Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to my channel Science Zone. If you are new to my channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched my previous videos of solid state and coordination compounds, then please click on the I button above so that you can see the previous video. And today we are going to start with a new topic, that is halogen derivatives. So this topic is actually from Maharashtra State Board syllabus of 12th standard, and this is the chapter number 10, that is the halogen derivatives. So let's get started with this new topic. So the topics to be covered in this chapter are classification of halogen derivatives, nomenclature of halogen derivatives, methods of preparation of alkyl halides, physical properties, optical isomerism in halogen derivatives, chemical properties, and uses and environmental effects of some of polyhalogen compounds. So this is a vast chapter and many important things to cover here, and today we are going to start with the introduction and IUPAC nomenclature of the halogen derivatives. So, in the beginning of the chapter itself, they have asked, can you recall? So, you have to identify the functional groups in the following compounds. So, the following compounds have which functional group? So, from compound number 1 to compound number 5, if you see properly, benzyl bromide, ferron 12, hexachlorobenzene, hexachlorohexane, and if you see all this, you will find that halogen is the common functional group here. So that is halogen. In the first one, there is bromine. In second, there is chlorine and fluorine. In third, there is chlorine. In fourth, there is chlorine. In fifth, there is chlorine. In short, the functional group here is halo. That means now these are halogen derivatives. So what is halogen derivative defined as? उसका definition हम कैसे करेंगे? So replacement of hydrogen atom or atoms. Remember this. Replacement of one hydrogen atom or more than one hydrogen atoms in aliphatic or aromatic hydrocarbon by halogen atoms result in the formation of halogen derivatives of hydrocarbons. In short, in any hydrocarbon, whether it is aliphatic or aromatic, if you replace one hydrogen or more than one hydrogen by halogen atom, they are called as halogen derivatives of hydrocarbons. Now we'll move towards the classification of halogen derivatives. तो इसका classification किस तरह से करना है? So इसके बहुत सारे basis है जिस पे halogen derivatives classified होते हैं. So the first one is on the basis of hydrocarbon skeleton. So it is on the basis of what is the nature of hydrocarbon. So in the first one you can see haloalkanes. That means the skeleton of the hydrocarbon here is alkane. So you can see here one of the hydrogen of this ethane is replaced by halogen and therefore it is called as haloalkane. The next one is haloalkene because here one of the carbon of the ethene is replaced by halogen. So it becomes haloalkene. The third one is haloalkyne, where one of the hydrogen of alkyne is replaced by halogen and it becomes haloalkyne. Next is haloarenes, where one of the hydrogen of the benzene और the arene ring. So benzene का मतलब ही है arene. Okay. So one of the hydrogen of arene is replaced by halogen
it is called as haloarenes. So this is haloalkanes, haloalkynes, haloalkenes and haloarenes. In all of these, one or more hydrogen atom can be replaced by halogen, and then they are classified as the following. The next is on the basis of number of halogen atoms. So first we have seen on the basis of carbon skeleton, that what is the nature of the carbon skeleton here, and now we'll be classifying it on the basis of number of halogen atoms. कितने halogen atoms present है उस हाइड्रोकार्बन चेन में, उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे. तो फर्स्ट वन इज monohalogen compound, where only one hydrogen, remember mono means only one, where only one hydrogen of any of the hydrocarbon is replaced by halogen. It can be alkene, it can be alkyne, it can be alkane, or it can be arene, anyone, but only one hydrogen atom is replaced. Second is dihalogen compounds. Di means two, that means where two hydrogen atoms of any of the hydrocarbon is replaced by halogen, it is called as dihalogen compounds. So you can see here in all of these cases, each hydrocarbon, the two hydrogen is replaced by halogen. It can be on the same carbon or the replacement can be on the adjacent carbon, but two hydrogen atom should be replaced by halogen. Then they are dihalogen compounds. The third one is trihalogen compounds. In trihalogen compounds, as the word say, the three hydrogen atoms is replaced by halogen. Okay, so here you can see there are three halogen atoms which are replacing the hydrogen atom of that hydrocarbon, making them trihalogen compounds. So first we have seen on the basis of hydrocarbon, second on the number of halogen atoms. Now further we are going to see classification of monohalogen compounds. So we have seen monohalogen compounds. Now we are going to classify it. So the first is alkyl halides or haloalkanes. So it is based on to which type of carbon the halogen is attached. Of course, it is a monohalogen compound. Therefore, only one hydrogen will be replaced by halogen atom. But this halogen atom is attached to which carbon, that defines the alkyl halide. यदि आपका halogen ऐसे कार्बन को अटैच है जो एक ही दूसरे कार्बन को अटैच है, so it will called as primary halide. यदि आपका halogen atom एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो दो अलग कार्बन को अटैच है, तो उसे कहेंगे secondary halide. And suppose if your halogen is attached to such a carbon which is attached to three other carbons, then it is tertiary halide. In short, the halogen is attached to which nature of carbon, that will define it, whether it is primary halide, secondary halide or tertiary halide. Next is allylic halides. In this, the carbon एक ऐसे कार्बन को अटैच होता है जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है. मतलब हैलोजिन एक कार्बन अवे डबल बॉन्ड से. ठीक है, तो ये हैलोजिन है, ये एक कार्बन अवे है डबल बॉन्ड से. देन दे आर कॉल्ड एज allylic halides. सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल. सो यहाँ पे हैलोजिन एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो एक कार्बन अवे है डबल बॉन्ड से. सो दे आर allylic halides. Next is benzylic halides. So the same thing, the same concept as allylic halide, just the thing is now the halogen is one carbon away from benzene ring.
मतलब एक हैलोजन एटम जो एक कार्बन अवे है बेंजीन रिंग से, सो उसे हम कहेंगे बेंजेलिक हैलाइड। इधर भी देख सकते हो, यह हैलोजन एक कार्बन अवे है बेंजीन रिंग से, सो दिस इज बेंजेलिक हैलाइड। द नेक्स्ट वन इज विनाइलिक हैलाइड। इसमें हैलोजन डायरेक्टली अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन को। ठीक है, तो इसमें हैलोजन डायरेक्टली अटैच है डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, सो दिस इज विनाइलिक हैलाइड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अलाइलिक एंड विनाइलिक। अलाइलिक में हैलोजन एक कार्बन अवे है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, बट विनाइलिक में हैलोजन डायरेक्टली अटैच है डबल बॉन्ड वाले कार्बन को। नेक्स्ट इज हैलो अल्काइन। इन दिस द हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, हैलोजन डायरेक्टली अटैच है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को, सो हैलो अल्काइन। एंड द अराइल हैलाइड, एज द नेम सेज, halogen directly attached to benzene ring, and these are the classification for the alkyl halides or haloalkanes. Now we'll move toward the nomenclature of halogen derivatives. Before moving to the nomenclature, you should know that according to the IUPAC system of nomenclature, alkyl halides are named as haloalkanes, aryl halides are named as haloarynes, and for dihalogen derivatives of aryne, there should be numbering used as 1, 2, 1, 3 and 1, 4. Now we'll see how to use these rules. ये सबसे पहला एग्जाम्पल है, तो ये सबसे सिंपल है, आप समझ सकते हो। सो ये कार्बन को 2 हाइड्रोजन अटैच है और 2 क्लोरीन, तो इसका आयुपेक नेम ऑफ कोर्स ये हो जाएगा, एक ही कार्बन है तो डाइक्लोरोमीथेन। मीन्स 2 of the hydrogen atoms of methane is replaced by 2 of the chlorine atoms, and therefore it becomes dichloromethane. In the next, नंबर द कार्बन, तो जहाँ पे हाइड्रोजन है उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है और इसके बाद वाले को सेकेंड, तो ये हो जाएगा ब्रोमोइथेन। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, आप यहाँ से नंबर दीजिए कि यहाँ से इट इज़ 1 एंड द सेम, सो 1, 2, 3। थर्ड नंबर के कार्बन को क्लोरीन अटैच है, सॉरी सेकेंड नंबर के कार्बन को क्लोरीन अटैच है, सो इट इज़ 2 क्लोरो, लॉन्गेस्ट चेन इज 3, सो प्रोपेन, सो इट इज़ 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट वाले के लिए वापस लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, तो 1, 2, 3, करेक्ट। और इस सेकेंड वाले को 2 मिथिल ग्रुप अटैच है, ओके, सो इट इज एक्चुअली 1 मिथिल ग्रुप अटैच है, 2 में से एक को तो हमने लॉन्गेस्ट चेन में गिन लिया और एक और मिथिल ग्रुप अटैच है, सो इट बिकम्स 1 ब्रोमो 2 मिथिल, लॉन्गेस्ट चेन इज प्रोपेन। नेक्स्ट इफ यू सी, इस कार्बन को 2 मिथिल ग्रुप अटैच है, करेक्ट, 3 मिथिल ग्रुप अटैच है, उसमें से हम 2 को लॉन्गेस्ट चेन में गिनेंगे, 1, 2, 3, तो इसको एक्चुअली मैं ड्रॉ कर दूं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो सपोज ये 3 मिथिल ग्रुप है और ये Br है, तो हमको लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है, तो 1, 2, 3, तो सेकेंड पोजिशन पे ब्रोमीन है, करेक्ट, सो इट बिकम्स 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन, सो 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। फॉर नेक्स्ट वन, इसके लिए तो इसका भी हम लोग ठीक से ड्रॉ करेंगे कि हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए, तो ये हो जाएगा, इसको 3 मिथिल ग्रुप्स अटैच है, मिथिल ग्रुप्स अटैच है, और ये है CH2 जिसको Cl अटैच है, नंबरिंग दो 1, 2, 3, तो ये हो जाता है 1 क्लोरो 2 डाइमिथिल प्रोपेन, करेक्ट। नेक्स्ट 1 क्लोरो इथीन। नेक्स्ट अभी हमें देखो, प्रोपीन को जो भी डबल बॉन्ड है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस है हैलोजीन से, जो डबल बॉन्ड है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस है हैलोजीन से, ये याद रखना। इसलिए हम लोग नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, ना कि यहाँ से,
क्योंकि अल्कीन को ज़्यादा प्रेफरेंस है। तो सेकेंड, थर्ड, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोपीन। ओके, ये हो जाएगा 1 क्लोरो इथाइन, ये हो जाएगा आयोडोफिनिल मीथेन। सो दिस इज आयोडोफिनिल मीथेन। ओके, सो मीथेन का एक हाइड्रोजन आयोडीन से रिप्लेस हुआ है और एक हाइड्रोजन फिनिल से, इसलिए आयोडोफिनिल मीथेन। नेक्स्ट वाले में हो जाएगा, आपको पता होगा इसको बोलते हैं टोलिन, CH3 बेंजीन रिंग को अटैच है तो टोलिन, तो ये हो जाएगा 4 आयोडोटोलिन। सो 1 2 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सो आयोडीन 4th नंबर पे है CH3 से, तो ये हो जाएगा 4 आयोडोटोलिन। और या फिर इसको ऐसे भी नाम दे सकते हो 1 आयोडो 4 मिथिल बेंजीन, बोथ आर करेक्ट। अब 2 हैलोजन एटम्स है, उनके रेफरेंस दे दो एक दूसरे से। सो दे आर 1 3, ठीक है, दोनों हैलोजन में रिलेशनशिप क्या है 1 3। आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करो कि यहाँ से, दोनों को रिलेशनशिप आएगा 1 3। सो दिस इज 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। So this is about the nomenclature of halogen derivatives. Now this is your homework which is given by your textbook, that is use your brain power. तो इसका नाम देना है फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले का नाम देते वक्त वापस लॉन्गेस्ट चेन चूज करो 1 2 3। सो ये हो जाता है 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट वापस लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। सो इट बिकम्स 1 आयोडो 2 मिथिल प्रोपेन, 1 आयोडो 2 मिथिल प्रोपेन। फॉर द नेक्स्ट वापस नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4। मैं यहाँ से नंबर शुरू करती तो ऑफकोर्स डबल बॉन्ड को वापस 2 नंबर ही आता, बट क्लोरीन को 4 नंबर आता, पर मैंने यहाँ से शुरू किया तो डबल बॉन्ड को भी 2 नंबर आया और क्लोरीन को भी 1, इसलिए मैंने नंबरिंग यहाँ से प्रेफर किया, ना कि यहाँ से। ओके, सो अब इसका नाम होगा 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। सी 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट वापस नंबरिंग 1 2 3 4। सो इट बिकम्स 1 ब्रोमो ब्यूट 2 आइन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 आइन। नाउ दिस इज ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। अब इसमें नंबरिंग देना पड़ेगा एक दूसरे के रेफरेंस से, तो आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू करो, दोनों का रिलेशनशिप सेम रहेगा। सो इट इज 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। होप सो आपने नोट डाउन कर लिया है। यदि आपको अभी भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स दी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। So we have seen what is alkyl halides, we have seen their classification, we have understood their nomenclature. Now we are going to move towards their preparation method. So first one is from alcohols. So हम alcohols को alkyl halides में convert कर सकते हैं। So alcohols को alkyl halide में convert करने के लिए 3 methods है। पहला by using halogen acid, second by using phosphorus halide, third by using thionyl chloride. So these are the 3 methods by which you can convert your alcohol to alkyl halide. So we will see first by using halogen acid, or also called as hydrogen halide. So it is HX. So ये वाले रिएक्शन में बेसिकली आपको क्या करना है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है और RX बनाना है। सो वाटर मॉलिक्यूल हमेशा आपका बाई प्रोडक्ट होगा। जब भी आपको अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड यूज करके अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है तो आपका बाई प्रोडक्ट क्या है, वाटर। सो और यहाँ पे सुटेबल कंडीशन, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। सो पहला है बाई अल्कोहल प्लस HCl, कौन सा भी अल्कोहल होने दो, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी,
तो प्राइमरी अल्कोहल देगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्कोहल देगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्कोहल देगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. इट इज सो सिंपल. और यहाँ पे रहेगा HCl लोगे तब यूज करना रिएजेंट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. जब आप अल्कोहल ये HCl यूज करोगे तब आप यूज करोगे एनहाइड्रस ZnCl2. अब इसमें से भी वाटर निकाल लो तो बचा RCl प्लस वाटर. नेक्स्ट अल्कोहल प्लस HBr, तब रिएजेंट यूज करना NaBr H2SO4 हीट. वापस इसमें से वाटर निकाल लो बचा RBr. नेक्स्ट है अल्कोहल प्लस HI, रिएजेंट है NaI H3PO4. वापस इसमें से वाटर निकाल लो तो बचा RI. और इतने सिंपल वे से आप आपके अल्कोहल को आपके अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड. सो देयर आर टू टाइप्स. एक है PX3, तो ये हो सकता है PCl3. ओके, सो इट कैन बी PCl3 or PBr3. You can use any of this. If you want bromine, okay, if you want your alkyl halide to be chlorine, so you use PCl3. If you want bromine, use PBr3. अब यहाँ पे क्या करना है, 3 molecules of alcohol लेना है. याद रखो 3 molecules of alcohol यूज करके PX3 डालो तो आपको मिलेगा 3 molecules of alkyl halide प्लस H3PO3. इन शॉर्ट ये आपको वापस साथ में निकाल लेना है. और ये 3 नंबर में इसलिए हो जाएगा 3, ये 3, सो इट बिकम्स H3PO3 और 3 molecules of alkyl halide. अल्कोहल प्लस PCl5 विल गिव यू R और एक Cl यहाँ पे तो RCl, एक H और यहाँ का सेकेंड Cl HCl और जो बचा POCl3. द लास्ट वन इज बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड. तो थायोनिल क्लोराइड से सिर्फ क्लोरीन ही लग सकता है R ग्रुप पे. सो अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड गिव यू क्लोरो अल्काइल. ओके, सो इट विल बी alkyl chloride. You will get the product alkyl chloride only because thionyl chloride have only chlorine. So it becomes RCl plus SO2 plus HCl. So this is how you can convert your alcohol to alkyl halides. First, by using hydrogen halide. Second, phosphorus halides, in that PCl3 and PCl5. And the third one, thionyl chloride, which is SOCl2. Now, next you are going to move. This is a quick revision of 11th standard. तो 11th standard में आपने पढ़ा है मार्कोनिफ्स एंड एंटी मार्कोनिफ्स रूल, करेक्ट. सो जब HBr होता है और जब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड की दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है. सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड की दोनों तरफ सेम ग्रुप्स प्रेजेंट है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH3, सेम ग्रुप्स. और यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है. तो जब HBr अनसिमेट्रिकल अल्कीन से रिएक्ट करता है इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब मैंने रिएक्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं डाला है, बिल्कुल भी नहीं डाला है, सिर्फ HBr है और मेरा अल्कीन है, तब Br ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसको ज़्यादा कार्बन एटम अटैच है. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन को एक ही कार्बन अटैच है, करेक्ट. इस कार्बन को 2 कार्बन अटैच है, करेक्ट. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस कार्बन को एक ही कार्बन अटैच है, इस कार्बन को 2 कार्बन अटैच है. तो जब मैं ऐसे वाले ओलिफिन को HBr से रिएक्ट करूँगी और जब पेरोक्साइड डालूंगी ही नहीं मेरी रिएक्शन में, तो Br कार्बन नंबर 2 को अटैच होगा, मतलब ऐसे वाले कार्बन को जिसको ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स अटैच हैं. बट जब मैं HBr वाले रिएक्शन में पेरोक्साइड डाल दूँ, ये रिएक्शन HCl या HI के लिए नहीं होता, सिर्फ HBr के लिए होता है. ओके, पेरोक्साइड वाला रिएक्शन दैट इज एंटी मार्कोनिफ्स रूल सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए फॉलो होता है, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है. तो जब मैंने अनसिमेट्रिकल ओलिफिन लिया, वापस HBr डाला और अब मैंने पेरोक्साइड डाल दिया है, तब मेरा Br ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसको कम से कम कार्बन अटैच है. तो यहाँ पे वापस मेरे पास 2 टाइप ऑफ कार्बन है,
इस कार्बन को एक ही कार्बन अटैच है, इस कार्बन को 2 कार्बन अटैच है, तो अब मेरा Br परऑक्साइड के प्रेजेंस में ऐसे वाले कार्बन को अटैच होगा जिसको कम कार्बन अटैच है, और वो एंटी मार्कोनिव्स रूल कहलाएगा. सो दिस इज मार्कोनिव्स वेयर द ब्रोमीन गेट्स अटैच टू द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, and this is anti-Markovnich's rule where the bromine gets attached to the less substituted carbon. उसके बेसिस पे अब हमें आगे का सॉल्व करना है. फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स मीन्स गेटिंग द अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. तो पहला क्वेश्चन ये है, हाउ विल यू ऑब्टेन 1 ब्रोमो 1 मिथिल साइक्लोहेक्सेन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर of 1 bromo 1 methyl cyclohexane. हमें ये प्रिपेयर करना है फ्रॉम अल्कीन. सो 2 पॉसिबल वेज है, आइदर यू कैन टेक दिस अल्कीन और यू कैन टेक दिस अल्कीन, एड HBr, एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने परऑक्साइड नहीं मेंशन किया है तो यहाँ पे आपको परऑक्साइड नहीं डालना है. और आपको पता है इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड Br ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन अटैच है. तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इस कार्बन को 2 कार्बन अटैच है, करेक्ट, और इस कार्बन को 3 कार्बन अटैच है. तो Br अटैच होगा ऐसे वाले कार्बन को जिसको ज़्यादा कार्बन अटैच है, मतलब इस वाले पोजीशन पे. और इस केस में आप देखोगे 2 ऑप्शन है, वापस ये और ये. तो अब ये वाले कार्बन को सिर्फ 1 कार्बन अटैच है, बट इस वाले कार्बन को 3 कार्बन अटैच है. तो Br अटैच होगा ऐसे वाले कार्बन को जिसको ज़्यादा कार्बन अटैच है, मतलब इस वाले पोजीशन पे. सो दिस इज Markovnich's रूल. सो बोथ ऑफ दिस रिएक्शन विल फॉलो द Markovnich's रूल एंड दे विल गेट अटैच टू द कार्बन विच इज अटैच टू मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वे. नाउ सेकेंड, you have to recall, this is just a revision from your 11th standard part. So the first reaction, that is CH4 plus Cl2, of course it will give you CH3Cl, and in the many other cases it end up with CCl4. So these are the products. अब HCl और ये वाले रिएक्शन में of course Markovnich's रूल फॉलो करना है, और आपको Cl को ऐसे कार्बन को अटैच करना है जिसको ज़्यादा कार्बन अटैच है, और इस केस में फिर ये अटैच होगा इस वाले कार्बन को, और हाइड्रोजन अटैच होगा लास्ट वाले कार्बन को. सो दिस इज योर प्रोडक्ट एंड फॉलोइंग Markovnich's रूल. नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, जैसे ही वर्ड परऑक्साइड आता है आपको याद रखना है इट विल फॉलो एंटी Markovnich's रूल. ओके, which rule it will follow? Anti-Markovnich's rule. And now in this case it will become CH3, मतलब अब Br अटैच होगा ऐसे कार्बन को जिसको कम से कम कार्बन अटैच है, इसलिए ये प्रोडक्ट हो जाएगा CH2Br. ओके, नेक्स्ट इज दिस. इसमें आपको ये याद रखना है CCl4 सॉल्वेंट यूज किया है, इसलिए इस केस में प्रोडक्ट होगा CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2Br. तो इसमें मिलता है हमें अलाइलिक ब्रोमाइड. तो जब भी CCl4 सॉल्वेंट यूज करेंगे हमें मिलेगा अलाइलिक ब्रोमाइड. तो इस तरह से आप ये सारे रिएक्शंस लिख सकते हो. नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो 2 प्रोडक्ट्स निकालना है, मेजर एंड माइनर. मतलब Br एक टाइम इधर अटैच होगा, एक टाइम इसमें अटैच होगा. तो ये 2 प्रोडक्ट्स है, ऑफ कोर्स आपको पता ही है ये 2 ही प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं. तो एक केस में मैंने Br यहाँ पे अटैच कर दिया है, ठीक है, और दूसरे केस में मैं Br कॉर्नर वाले कार्बन को अटैच करूँगी, मतलब ऐसे वाले कार्बन को जिसको कम कार्बन अटैच है. तो आप मुझे जल्दी से बताओ मेजर कौन माइनर कौन. तो आप सबसे पहले देखोगे कि एरो पे परऑक्साइड नहीं है, सो दिस इज द मेजर एंड दिस इज द माइनर. गुड. नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन में अभी देखोगे आप परऑक्साइड है, पर पहले हम 2 प्रोडक्ट लिख लेते हैं जल्दी से. तो एक केस में Br यहाँ पे अटैच होगा, सेकेंड केस में Br यहाँ पे अटैच होगा. तो आप जल्दी से, मैं CH3 जब रहेगा तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगी
कि फिर हमारा टाइम बच सके तो हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। और ये CH2 CH3 हो गया। और नेक्स्ट केस में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करूँगी और यहाँ पे अब मैं Br अटैच करूँगी और ये हो जाएगा CH3। तो अब आपने देखा एरो पे परऑक्साइड है, तो जब एरो पे परऑक्साइड है तो Br ऐसे वाले कार्बन को अटैच होगा जिसको कम से कम कार्बन अटैच है। तो इस कार्बन को 3 कार्बन अटैच है, इस कार्बन को 2। सो मेजर ऑफ कोर्स विल बी दिस एंड माइनर इज दिस इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अब लास्ट वाला क्वेश्चन। सो लास्ट वाले क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। वापस इसमें दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, तो उन्होंने दोनों पॉसिबिलिटीज़ पूछे हैं। तो Br यहाँ पे और ये हो गया CH3 और फिर दूसरे इसमें CH3 CH2 Br और ऑफ कोर्स परऑक्साइड दिख रहा है एरो पे, मतलब मेजर प्रोडक्ट O है जहाँ पे Br ऐसे कार्बन को अटैच है जिसको कम कार्बन अटैच है। तो ऑफ कोर्स नाउ दिस इज द मेजर एंड दिस इज द माइनर एंड दिस इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द फर्स्ट वन। ठीक है, ये एग्जैक्ट अपोजिट है। तो ये मार्कोनिव्स रूल है, ये एंटी मार्कोनिव्स रूल है और ये भी एंटी मार्कोनिव्स रूल है। नाउ नेक्स्ट इज बाय हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शंस है। फिनक्लेस्टिन रिएक्शन जिसमें क्लोरोअल्केन reacts with NaI in the presence of acetone to give you Ri and NaCl। तो NaCl सॉल्ट बन के बाहर चला गया और बचा क्या मेरे पास, Ri। तो उसको बोलते हैं फिनक्लेस्टिन रिएक्शन। नेक्स्ट इज स्वार्ट्स रिएक्शन, उसमें AgCl सॉल्ट बन के बाहर चला जाएगा और बचेगा अल्काइल फ्लोराइड। सो दिस इज अल्काइल फ्लोराइड और AgCl सॉल्ट बन के निकल गया। सो दिस इज अ सिंपल हैलोजन एक्सचेंज। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर दैट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो ऑफ कोर्स आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में आपने किया है कि आपको जस्ट एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है बेंजीन का Cl से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सबको क्वेश्चन आया होगा कि हमने सब्स्टिट्यूट क्यों किया। यहाँ पे तो हम ऐड कर रहे थे, डबल बॉन्ड को गायब कर रहे थे, करेक्ट। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड को गायब कर रहे थे, पर यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक हाइड्रोजन निकाल के Cl लगा दिया। व्हाई? बिकॉज बेंजीन इज वेरी वेरी स्टेबल कंपाउंड और बेंजीन इतना स्टेबल है, भले ही उसमें डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं पर वो डबल बॉन्ड्स उसके एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए हैं और बेंजीन कोई भी हालत में अपना स्टेबिलिटी नहीं छोड़ता है। याद रखो, बेंजीन कोई भी हालत में अपना स्टेबिलिटी नहीं छोड़ता, अपने तीनों बॉन्ड को कुछ नहीं होने देगा। तो क्या करेगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन निकाल के Cl लगा लेगा। ठीक है, सो दिस विल बिकम नाउ क्लोरोबेंजीन। सो नेम ऑफ द हैलाइड प्रोड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन इज क्लोरोबेंजीन। And which type of reaction it is? It is substitution reaction. बाकी सब डबल बॉन्ड्स कौन से रिएक्शन दिखाते हैं, एडिशन। सो मार्कोनिफ रूल, एंटी मार्कोनिफ रूल, वो सब है एडिशन रिएक्शन, बट दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो यू कैन सी हियर टोलिन when reacts with Br2 in the presence of Fe as catalyst and in dark room it gives orthobromotoluene और पैराब्रोमोटोलिन। मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन नहीं जाएगा, याद रखना, मेटा पे प्रोडक्ट नहीं बनाना है, आपको बनाना है ऑर्थो पे और पैरा पे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। If you have any doubt, you can ask me on this email ID askyourdoubt04@gmail.com. Thanks for watching my video. If you have liked my video, please give it a thumbs up. Share this video to more and more of your friends and meet you soon in the next lecture of this chapter itself. That's all for today. Thank you. And before departing, change your life today. Don't gamble on the future. Act now and without delay. So that's all for today. Thank you. Stay tuned.